Is Marucha Beauty worth it? Let's find out. It's great as is I don't have any complaints from these lipsticks, but I expected innovation. This feels like been there, done that. The shade range, the formula, everything is what the market is already clustered with. And right now the only beauty products that stand out are kind of the ones that are making innovation in packaging, formula. If anyone wants to bring innovation in the saturated makeup market right now, both formulation and packaging, they need to spend a lot of time and money in R&D. I think it's unfair to expect that from any small business and especially Indian influencer. They are already doing bad in terms of content. She herself doesn't know half of her own product name. आजकल हर creator अपनी company चला रहा है और बोलते हैं unicorn in making. If she is doing white labeling, why can't she be honest with her audience? She talks about how much effort and time she has given to get the perfect formulation. The entire brand seems shady up. I'm never gonna buy a single thing from them. She has amazing makeup skill, but fooling her consumer like this is so cheap. इसकी overpriced average product purchase भी कौन कर रहा है? भाई, she didn't even try. मरुचा ब्यूटी के नाम से एक मेकअप ब्रांड है जो कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर मृणाल पंचाल का है और लॉन्च के बाद से ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स, अनबॉक्सिंग वीडियोस और रिव्यूज आने लगे। हर जगह वही प्रोडक्ट और एक इंस्टेंट हाइप क्रिएट होने लगी। लेकिन जितनी तेज ये हाइप बन रही थी उतनी ही जल्दी शुरू हो गई कंट्रोवर्सी। सबसे पहला एलिगेशन पैकेजिंग कॉपी करने का, उसके बाद आए असली बायर्स के रिव्यू। इन्फ्लुएंसर्स के ओवरली पॉजिटिव पेड रिव्यूज थे, बट इन रियलिटी पब्लिक के रिव्यूज काफी ज्यादा नेगेटिव निकले। Own brand Marucha Beauty. First product we have are lipsticks, all the claims at the back. 5 ml of product for $6.99, which I think is a very good price point. This is a shade brownie. One swipe pigmentation. Yeah, it's not a transfer proof lipstick. It's like a lip cream. You know, I love me a good red. It almost feels cloud-like you don't have anything on your lips. And it's not drying at all. I'm super impressed with the packaging, formula and the feel of the blush pout lipsticks. Please definitely get a sample. Panchas liquid lipsticks. They're priced at 700 rupees, and here's my complete and honest review about these lipsticks. The packaging is premium with a rose gold cap and transparent body. It's sturdy and does not feel cheap at all. The lipsticks give one swipe pigment and the texture is soft velvety and does not feel drying at all. Also, it's not fully matte, so it does transfer a little bit. And here's the best part, these lipsticks are so easy to take off. The ordering process was super smooth. I got regular updates via WhatsApp and normal text, and the delivery happened in just 4 to 5 days. But here's the catch. You also have to pay 100 rupees plus for shipping. And as a new brand, I was expecting some offers, but there was just one introductory offer. Buy 3 and get 10% off, which I felt as a consumer was not worth it because I wouldn't jump straight to buying 3 lipsticks, especially if they are that highly priced. I'd rather buy one beforehand and then go for the next one if I like the lipstick. मृणाल पंचाल एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और एक लॉयल फैन बेस भी है। तो नेचुरली जब उन्होंने अनाउंस किया वो अपना खुद का मेकअप ब्रांड मरुचा ब्यूटी लॉन्च कर रही हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई। लॉन्च के बाद प्रोडक्ट्स आए ब्राइट कलर में, थोड़ी क्वर्की पैकेजिंग के साथ, और सबसे बड़ी बात थी मृणाल का अपना फेस वैल्यू। आज के टाइम में मार्केटिंग में फेस वैल्यू ही सबसे पावरफुल होती है। चाहे प्रोडक्ट अलग हो या ना हो, अगर पीछे एक बड़ा नाम है तो हाइप क्रिएट करना एकदम इजी हो जाता है और इस केस में भी वही हुआ। जैसे ही ब्रांड लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर हर जगह रील, अनबॉक्सिंग वीडियोस और रिव्यूज आ गए। कई लोगों ने पेड रिव्यूज दिए और उसमें भर भर के तारीफें करी। हर वीडियो में एक ही जैसा रिएक्शन था, मेकअप परफेक्ट, लाइटनिंग परफेक्ट, सब कुछ एकदम फ्लॉलेस। लेकिन जितनी जल्दी ये हाइप बनी थी उतनी ही जल्दी लोगों को असली चीजें समझ आना शुरू हो गई। और जब हम जैसे लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम, कहीं पैकेजिंग में इशू और कहीं एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का गैप। और यहीं से शुरू हुआ असली प्रॉब्लम, पैकेजिंग कॉपी एक्यूजेशन। रिसेंटली रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां एक यूजर ने मरुचा ब्यूटी के लिप प्रोडक्ट को एक फेमस कोरियन ब्रांड FV के साथ कंपेयर किया और बिलीव मी, साइड बाय साइड पिक्चर्स देखने के बाद आप भी यही सोचोगे ये कोइंसिडेंस है या स्ट्रेट अप कॉपी, क्योंकि दोनों के डिजाइन लिटरली ट्विन लग रहे थे। सेम कैप्सूल लाइक बुलेट शेप, सेम मेटालिक ग्लॉसी आउटर पैकेजिंग और कलर पैलेट भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। बस एक चीज अलग थी, ब्रांड का नाम। इन रियलिटी ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ओरिजिनलिटी एंड ट्रस्ट। अगर पहली नजर में ही प्रोडक्ट कॉपी कैट लग जाए तो ऑडियंस का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली नहीं रहता। सोचो, एक ब्रांड जो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी पे ओरिजिनलिटी का बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब लोग ऑलरेडी ब्रांड के फॉर्मुलेशन पे भी सवाल उठाने लगे, मतलब टेक्सचर और क्वालिटी पे डाउट्स और पैकेजिंग पे भी कंसर्न। बेसिकली एक ही टाइम पे हाइप, डिजाइन और क्वालिटी के ऊपर डाउट और ऑडियंस का ट्रस्ट सीरियसली अफेक्ट हो गया। अब सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं, फॉर्मुलेशन और रिव्यूज पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे सो स्मूथ ग्लाइड्स लाइक बटर, पिगमेंटेशन इज अमेजिंग, टोटली वर्थ द प्राइस। लेकिन जब बायर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो बिल्कुल ही अलग था। बायर्स का रिएक्शन था पिगमेंटेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोडक्ट लिप्स पर अनइवन लगता है और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एवरेज है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में PR पैकेजिंग मिलती है, कोलैब का पैसा मिलता है, तो नेचुरली उनका रिव्यू शुगर कोटेड होगा। लेकिन जो हम जैसे कस्टमर है जो 700 to 800 खर्च करके प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनका रिव्यू टोटली डिसअपॉइंटमेंट होता है। और यही कॉन्ट्रास्ट ओवर द टॉप इन्फ्लुएंसर हाइप वर्सेस नॉर्मल कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट ने मृचा ब्यूटी को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मृचा ब्यूटी पर कॉपी कैट होने के एक्यूजेशन लगे हों। इससे पहले भी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट और पैकेजिंग डिजाइन इंटरनेशनल ब्रांड से इंस्पायर्ड हैं या फिर ऑलमोस्ट कॉपीड लगते हैं। और ऑनेस्टली ये एक पैटर्न बन गया है इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स में। एक सप्लायर से व्हाइट लेबल प्रोडक्ट उठाओ, उस पे अपना लोगो चिपकाओ, थोड़ा मार्केटिंग और हाइप बिल्ड करो। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस को लगता है इन्फ्लुएंसर ने मंथ्स और ईयर्स रिसर्च करके एक यूनिक फॉर्मूला बनाया है, लेकिन रियलिटी ज्यादा केसेस में वो बस एक रीब्रांडेड प्रोडक्ट ही होता है। इसीलिए आजकल लोग इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स को लेकर थोड़ा डाउटफुल हो गए हैं। उन्हें लगता है हाइप ज्यादा है और ओरिजिनलिटी कम। और जब भी ऐसी कंट्रोवर्सीज आती है ना, तो एक चीज बहुत क्लियरली सामने आ जाती है, पब्लिक रिव्यूज और इन्फ्लुएंसर रिव्यूज का गैप। पब्लिक के रिव्यूज बोल रहे हैं नॉट वर्थ द मनी, पैकेजिंग कॉपी है, ओरिजिनलिटी जीरो। इन्फ्लुएंसर हाइप पे चल रहा है, क्वालिटी फ्लॉप है। और इन्फ्लुएंसर रिव्यूज पर हर एक लाइन स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ओ माई गॉड गाइज, दिस शेड इज माई फेवरेट, सो गुड फॉर इंडियन स्किन टोन, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, एक कस्टमर किस पे ट्रस्ट करे? और यही है सबसे डेंजरस पार्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। क्योंकि अगर एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ पैसे के लिए अपने फॉलोअर्स को प्रोडक्ट पुश करेगा तो शायद शॉर्ट टर्म में सेल हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका खुद का क्रेडिबिलिटी, उसका ट्रस्ट सब वहीं खत्म हो जाएगा। सो रिसेंटली एक और ब्रांड का नाम सामने आया, द मस्ट क्लॉथिंग ब्रांड। एक रेडिट पोस्ट वायरल हुआ जिसमें एक यूजर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक रेडिट एड दिखा और वहां से उन्होंने COD पर ऑर्डर प्लेस किया। वेबसाइट देखने में एकदम कन्विंसिंग थी तो उन्होंने 2 शर्ट्स ऑर्डर कर दी। अब 10 दिन बाद उन्हें एक ही शर्ट डिलीवर हुआ और डिलीवरी के टाइम उन्हें जबरदस्ती पूरा COD अमाउंट यानी दोनों शर्ट्स का पे करवाया गया। नेचुरली कस्टमर ने तुरंत कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, ईमेल भेजा, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया, इंस्टाग्राम पे भी ट्राई किया, लेकिन ब्रांड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने ब्रांड के पोस्ट पे कमेंट करना स्टार्ट और स्कैम को कॉल आउट करना स्टार्ट किया और ब्रांड ने उनका ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे अकाउंट से DM किया तो उन्होंने एक रिफंड का प्रॉमिस किया, लेकिन अब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मैसेजेस बस सीन पर छोड़ दिए जा रहे हैं, ना ही रिप्लाई ना ही रिफंड। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे और भी एक्सपीरियंस सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने नान की बुटीक नाम के एक ब्रांड के बारे में बात किया था इस वीडियो में, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। अब सोचो ऐसे इन्फ्लुएंसर ब्रांड केसेस का इम्पैक्ट सिर्फ कस्टमर तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली असली और जेन्युइन ब्रांड्स को भी अफेक्ट करता है। और ऐसे कुछ ब्रांड्स की वजह से लोग ट्रस्टेड ब्रांड्स पे भी डाउट करने लगते हैं। मतलब जो ब्रांड सच में क्वालिटी और ओरिजिनलिटी मेंटेन कर रहा है, उनका बिजनेस भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। 1-2 ऐसे ब्रांड की वजह से पूरी इंडस्ट्री का इमेज खराब हो जाता है और इसी वजह से कस्टमर काफी कॉटियस और नेगेटिव हो जाते हैं। इन रियलिटी नाम और फॉलोवर के दम पर कोई भी ब्रांड लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस नहीं किया गया तो सक्सेस सिर्फ टेम्परेरी ही रहेगी, परमानेंट कभी नहीं हो पाएगी। क्या इन्फ्लुएंसर ओन ब्रांड बस अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर चल रहे हैं या उनके प्रोडक्ट और सर्विस एक्चुअली में रिलायबल है? चलो मान भी लेते हैं कि नए बिजनेस के पास फंडिंग और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो अपने ही लॉयल फॉलोअर्स को चीप प्रोडक्ट सेल करें या डिलीवरी ही ना करें। और इसीलिए इन्फ्लुएंसर ब्रांड ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्दी नहीं होते। ट्रस्ट बनाना पड़ता है और वो सिर्फ हाइप और फैंसी पैकेजिंग से नहीं आता बल्कि क्वालिटी प्रोडक्ट से आता है। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर ट्रस्टेड ब्रांड जहां से आप हमेशा शॉपिंग करते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।